Hello students, we will see the chemical properties of phenols in this lecture today. Now, first of all, phenol gives three types of reactions. One reaction is due to the OH group attached to the benzene ring. One type of reactions in which benzene ring gives the reaction, and some are special reactions. So, we will see one by one for all these. First, we will go through the reactions which are due to phenolic OH group. So, the first reaction for this is acidic nature. Phenol is a weak acid and but it is a stronger acid than alcohols and weaker acid than carboxylic acids. It turns blue litmus paper to red, and it also reacts with alkali metals, like when phenol is treated with alkali metal like sodium, potassium, aluminium, etc. This on treatment with sodium metal, it gives what? Sodium phenoxide plus water plus hydrogen gas, sorry, not water, plus hydrogen gas. This reaction proves that the phenol is acidic in nature. Sometimes the question comes on this reaction, ऐसा पूछते हैं कि कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे जब 1 मोल ऑफ OH रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ. तो देखो अभी यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन निकला होगा, इसीलिए कितना हो जाएगा, हाफ मोल. तो हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. या फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस हाउ मेनी मोल्स ऑफ फिनॉल्स आर रिक्वायर्ड. तो कितने मोल्स लगेंगे, 2 मोल्स लगेंगे, तब जाकर 1 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. तो ये एक रिएक्शन हो गई. दूसरा एक और रिएक्शन है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि फिनॉल्स एसिडिक नेचर के होते हैं. दैट इज फिनॉल्स आर ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH. NaOH क्या है? इट इज अ बेस. And base, and what is the nature of phenol? Just I am saying to you that is acidic in nature. ये acidic nature क्या है और इसे बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी. और ये कंपाउंड क्या फॉर्म करेगा? सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करेगा. ठीक है, ये रिएक्शन भी प्रूव करती है कि ये कंपाउंड भी फिनॉल कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं. ठीक है, बट ये वीकर एसिड होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के. अब ये हमें कैसे पता चला कि ये वीकर एसिड होते हैं? ये हम एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी यूज कर सकते हैं फिनॉल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, कि फिनॉल्स डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. याद रखिएगा, फिनॉल्स डू नॉट रिएक्ट विद sodium carbonate and sodium bicarbonate. Now this acidic nature of phenol is only due to the presence of this OH group, and this OH group is polar in nature. अब कैसे वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है वो अब हम पढ़ेंगे. Now this OH group is polar in nature, and oxygen being more electronegative, what it will do? It will attract the electron pair shared between oxygen and hydrogen towards itself. As a result of this, it will form phenoxide ion, and the hydrogen is free to move. So this phenoxide ion is formed, and it will have a negative charge because it is having 3 pairs of lone pairs of electrons, plus H positive ion is released. As it releases H positive ions, means it confirms that the phenol is acidic in nature. Now why it abstracts? Let's see that the hydroxyl group in the phenol is directly attached, this group is directly attached to an sp2 hybridized carbon of benzene ring, and this ring acts as an electron withdrawing group. Due to the higher electronegativity of this sp2 hybridized carbon of phenol, to which the OH is attached, the electron density present over this oxygen decreases, and it shifts towards the benzene ring. As a result of this, it releases this oxygen being electronegative, it abstracts this electron pair towards itself, and this hydrogen is free to move. Is it okay? समझा आपको कैसे किया मैंने? अब हम पढ़ेंगे कि why this happens and how the phenol
is stable after releasing the H positive ion. And what is this? This is phenoxide ion. So this phenoxide ion is also stable due to resonance. If I am going to compare the phenols with alcohols, phenols are more acidic than alcohols. अब देखते हैं क्यों वो ज़्यादा अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं. एग्जाम्पल CH3 CH2OH. अब अगर इसमें से मैंने H पॉजिटिव आयन रिमूव किया तो क्या हो जाएगा, ये क्या देगा, CH3 CH2O नेगेटिवली चार्ज प्लस H पॉजिटिवली चार्ज. अब यहाँ पर क्या है, दिस इलेक्ट्रॉन, दिस CH3 ग्रुप इज व्हाट, इट्स एन इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप. एज इट गिव्स इलेक्ट्रॉन, तो अब ऑक्सीजन को तो ज़रूरत ही नहीं है हाइड्रोजन की, तो उसने अगर रिलीज भी कर दिया तो वो वैसे ही रहेगा इथॉक्साइड आयन फॉर्म करके. जब और ये रेजोनेंस तो शो नहीं कर सकता. जबकि फिनॉल के केस में क्या होने वाला है, फिनॉल के केस में अगर ये OH है और इससे हमने H पॉजिटिव आयन रिमूव कर दिया तो ये क्या बना देगा, फिनॉक्साइड आयन बना देगा. और ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसके साथ में H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा. और ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये स्टेबल है क्योंकि ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देने वाला है और इसमें रेजोनेंस शुरू होने वाला है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है. अब हम देखेंगे कि ये क्यों ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनॉल. As compared to phenol, phenoxide ion is more stable due to resonance. Let's see that. Let's see the resonating structures of phenol. तो ये phenol का स्ट्रक्चर है. अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ही यहाँ शिफ्ट होगा ये कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. तो अब ये देखो कैसे दिखने लगेगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आ गए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन. अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, वो रिंग के पास गए हैं, इसीलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर आ गए हैं तो वो यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव. ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर रखे हुए हैं ये ज़्यादा देर ऐसे बाहर नहीं रह सकते, ये वापस रिंग में आएंगे. अगर ये रिंग में आएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बाहर चले जाएंगे. ठीक, अब ये बाहर जाने पर कैसे दिखेगा, बेंजीन रिंग, और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए. यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन. अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास अब सिर्फ एक ही लोन पेयर बचा है. उसमें इसके पास 2 लोन पेयर थे पहले, एक लोन पेयर उसने शिफ्ट कर दिया है, डबल बॉन्ड बना के. अब ये इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा देर यहाँ रह नहीं सकते तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, अंदर जाएंगे. ये जैसे ही अंदर जाएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे. अब देखिए कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, ये ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए और ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर चले गए, ये इधर, और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर. अब ये इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अंदर चले जाएंगे. ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही अंदर चले जाएंगे तो ये कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को वापस ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर कर देगा. तो अब ये कैसे दिखने लगेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना प्रैक्टिस कर रहे से ही आएगा ये. ठीक है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है आपको. तो ये लोन पेयर आ गए और ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया. तो देखो जैसे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट थे उसके ऑल्टरनेट पोजीशन पे अब हो गए, तो ऐसे हो गए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसके, फिनॉल के. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट रहा तो वो स्टेबल जो होते हैं, वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं. एंड दिस स्ट्रक्चर विल रिक्वायर एनर्जी टू सेपरेट दिस चार्ज एंड देयरफॉर दे विल बी अनस्टेबल. अगर मैंने फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए होते हैं, फिनॉक्साइड आयन के कैसे स्ट्रक्चर्स रहेंगे, देखो फिनॉक्साइड आयन है, ऑक्सीजन है और इसके पास में 3 पेयर ऑफ लोन पेयर्स थे और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था. अब यहाँ पर कैसे दिखेगा, देखिए अब वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे की तरफ ट्रांसफर करेगा. कैसे बनने वाले हैं वो देखेंगे अब. तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ ट्रांसफर करेगा, जैसे ट्रांसफर करेगा ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स बाहर की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर कैसे दिखने लगेगा फिर स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग, और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और सिर्फ
दो ही लोन पेयर्स बचेंगे, पहले 3 थे अब 2 ही बचेंगे। अब 2 लोन पेयर है तो ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। ये बॉन्ड ऐसा ही और ये बॉन्ड ऐसा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर नहीं रह सकते यहाँ पे, तो ये अंदर चले जाएंगे। ये जैसे ही अंदर जाएंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे और फिर स्ट्रक्चर कैसे दिखने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके पास में 2 लोन पेयर्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते, वो अंदर चले जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर चले जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। तो अब स्ट्रक्चर कैसे दिखने लगेगा, ये बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आ गए तो माइनस चार्ज, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके पास में 2 लोन पेयर्स। ऐसे अगेन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर चले जाएंगे और ये वाला जो डबल बॉन्ड है उसमें के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। तो अब स्ट्रक्चर कैसे दिखने लगेगा, बेंजीन रिंग रहेगी और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन और उसके पास लोन पेयर होगा। अब देखिए फिनॉक्साइड आयन में क्या हुआ है, इन द फिनॉक्साइड आयन इट डू नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी फॉर द चार्ज सेपरेशन, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही माइनस चार्ज है और अगर सिर्फ माइनस चार्ज है और वो भी किसके ऊपर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के ऊपर, इसीलिए फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फिनॉल। समझा सभी को, बहुत ही सिंपल है, ये समझ में आ गया ना आपको ये कैसे किया। तो फिनॉक्साइड आयन यानी कि जब फिनॉल H पॉजिटिव आयन दे देगा तो वो फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा और वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। अब देखो फिनॉल ऐसा होता है स्ट्रक्चर, अब अगर इसमें कोई और ग्रुप अटैच होगा, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, सपोज करिए कि NO2 ग्रुप अटैच है, तो अगर ऐसे जब ग्रुप दूसरे अटैच होते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर तब क्या एसिडिक कैरेक्टर पे इफेक्ट पड़ता है वो हमें पढ़ना है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो अटैच्ड होते हैं किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर, ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप्स। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप कौन से होते हैं, ये बहुत सिंपल है याद रखना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो होते हैं, एग्जांपल है इसका NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, CN ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है और हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होते हैं। ठीक है, तो अब इसे कैसे याद रखना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर डायरेक्टली रिंग को लगा होता है तो वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होते हैं। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो रिंग को लगे हुए, इसीलिए ये कैसे ग्रुप हो गए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो गए। और इसमें क्या होता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होता है ना वो उस के बाजू में रहता है, यानी यहाँ पर इस केस में देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दोनों ही हैं, बट नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, और वो बाजू में लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो वो क्या करता है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है इस नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन किससे करने लगेगा, फिर रिंग से करने लगेगा, इसीलिए हम इसे क्या बुलाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप बुलाते हैं। सेम केस CN केस में भी है, CN में भी क्या होने वाला है, C और N में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, किससे, कार्बन से, और कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं तो वो किससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगेगा, रिंग से, इसीलिए ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। और हैलोजेंस तो आपको पता है कौन से होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन लोग तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव है मींस वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर जब अट्रैक्ट करेगा तो फिर रिंग के पास तो नहीं है तो रिंग किससे लेने लगेगी, ऑक्सीजन से लेने लगेगी। ऐसे तो ये सब कौन से ग्रुप्स हो गए, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो गए। समझा आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप्स यानी क्या, ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, एग्जाम्पल CH3, अगर ये ग्रुप लगा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, NH2 भी इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन तो लेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन खुद ही दे सकता है, ये हो गया। और OR, ये ग्रुप भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप है।
ठीक, समझा आपको कैसे किया, कैसे बताया मैंने आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन गिविंग क्या होते हैं। तो अब देखते हैं, एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, इसी का एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे ये बेंजीन रिंग है और इसमें नाइट्रोजन N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने तरफ अट्रैक्ट किया, जैसे इसने अपने तरफ अट्रैक्ट किया तो ये क्या करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन पेयर लेने लगेगा। अब ये जब इससे इलेक्ट्रॉन पेयर लेने लगेगा तो ये वाला किससे लेगा, ये वाला चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो फिर ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है इसमें ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तभी तो वो रिंग को दे पाएगा। तो ऐसे शिफ्टिंग होने लगेगी इलेक्ट्रॉन्स की, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा है। अब अगर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा तो ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं रहेगा, तो दिस बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक एंड इट इज इजी टू मूव आउट, मीन्स इसका H पॉजिटिव आयन जल्दी रिलीज हो जाएगा। और जब भी कभी H पॉजिटिव आयन कोई भी स्पीशीज रिलीज करता है तो हम उसे क्या बुलाते हैं, एसिड, मीन्स इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द फिनॉल, जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप फिनॉल को अटैच होगा, इट ऑलवेज इंक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर। समझा मैंने क्या बोला, ये एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब इसमें ना इफेक्ट्स पे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन से इफेक्ट्स प्रेजेंट है। आपने इफेक्ट्स पढ़े थे, याद है कि आपको कौन कौन से इफेक्ट्स पढ़े थे, आपने 11th क्लास में पढ़े थे। एक था इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, है ना, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ऐसे आपने 4 इफेक्ट्स पढ़ाए थे आपको। तो वो इफेक्ट्स पर भी क्वेश्चन होता है। तो जैसे हर का अलग अलग इफेक्ट शो करने का वो रहता है। अभी आपको ये समझ में आया ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। अब NO2 के बारे में बताती हूँ। NO2 जो है ये 2 टाइप के इफेक्ट शो करने वाला है। ये क्या कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, किसने शुरुआत की, सब ऑक्सीजन ने शुरुआत की, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया, इसीलिए ये और ये रिंग को है क्या अटैच नहीं है, तो ये तो चेन में है, तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया, -I इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा इफेक्ट है, -I। और जो R रेजोनेंस शो कर रहा है ना, ये ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो रिंग के अंदर रेजोनेंस शो कर रहा है, तो ये भी कैसे है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इसीलिए ये भी कौन सा इफेक्ट हो गया, -R इफेक्ट है। मींस NO2 जो है वो 2 टाइप के इफेक्ट शो करता है, एक -R और एक -I। अब इनमें से जो प्रीडोमिनेट करेगा वो पावरफुल, जो पावरफुल होगा वो प्रीडोमिनेट करेगा। तो इनमें कौन पावरफुल होता है, इसमें -R जो होता है वो प्रीडोमिनेट होता है, इट इज डोमिनेटिंग। -R डोमिनेट करता है और -I जो होता है वो सप्रेस हो जाता है इसमें। समझे आपको। अब देखो इसी में हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मेरे पास में कंपाउंड है, फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेती हूँ और उसमें एक NO2 ग्रुप रख देती हूँ, और एक और फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, उसमें 2 NO2 ग्रुप रख देती हूँ, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, उसमें 3 NO2 ग्रुप रख लेती हूँ। OH है, यहाँ पर एक NO2, यहाँ पर एक NO2 और यहाँ पर एक NO2, और एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ जिसमें एक भी NO2 ग्रुप नहीं है, मीन्स सिर्फ फिनॉल का स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखिए, अब क्या है, मैंने क्या बताया था अभी आपको कि जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप फिनॉल को अटैच होगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनको अरेंज करो आप एसिडिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली। तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा, फिनॉल। उसके बाद कौन सा होगा, एक NO2 ग्रुप वाला, ये एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा ना, ये सबसे लीस्ट होगा ये। उसके बाद में फिर ये इसका एसिडिक कैरेक्टर और ज्यादा होगा और इसका एसिडिक कैरेक्टर तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं इनका ऑर्डर अरेंज करना चाहूँ तो कैसा हो जाएगा इसका ऑर्डर, देखो इसको अगर मैं A, B, C और D नाम दे दूँ, तो अगर मुझे इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो क्या हो जाएगा, D का सबसे कम हो जाएगा, उसके बाद में A, फिर उसके बाद में B और उसके बाद में C। तो ऐसा ऑर्डर रहेगा, ठीक। हम यही चीज ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस पर भी पढ़ सकते हैं बेटा, उस पर भी क्वेश्चन बनता है, बताती हूँ मैं वो। अब जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि अगर ये NO2 ग्रुप जो है वो अगर डिफरेंट पोजीशंस पे लगा, एक ही NO2 ग्रुप हो पर वो डिफरेंट पोजीशन पे लगा हो, जैसे ये वाला है, ये कौन सा पोजीशन पे लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेती हूँ,
जैसे यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा है तो हम उसे क्या बुलाएंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बुलाएंगे। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें NO2 ग्रुप यहाँ लगा देते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे हो गया तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो ये कौन सी पोजीशन पे हो गया, मेटा पोजीशन पे हो गया तो ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है। ठीक, अब इनके एसिडिक कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन आता है। अब देखो पहले ही हमने पढ़ा था कि अगर फिनॉल सिर्फ फिनॉल है तो वो तो एसिडिक होता है, बट जैसे ही उसमें NO2 यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लग जाता है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। मीन्स अब इनका एसिडिक कैरेक्टर तो इससे तो ज्यादा ही रहने वाला है, पर अब किसका सबसे ज्यादा रहने वाला है और किसका कम रहने वाला है ये हमें बताना है। तो क्या होगा कि ये जो है पैरा, अब कैसे चेक करना है इसको चेक करने के लिए एक मेथड बताती हूँ। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी ऑल्टरनेट पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है इस साइड पे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑल्टरनेट पोजीशन पे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखे थे ना, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे चार्जेस आते हैं तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब पहले आप पॉजिटिव चार्ज ले लेना और फिर देखना कि किसमें पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली इस O के नीचे आ रहा है। अगर इसके नीचे जैसे ही ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ये तुरंत उसमें से इलेक्ट्रॉन लेगा इस ऑक्सीजन में से। अगर वो फास्टली इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हाइड्रोजन तो फिर बाहर जा सकता है। इसीलिए ये वाला और ये वाला मोर एसिडिक होगा क्योंकि इसमें इस कार्बन के ऊपर इमीडिएट ऑक्सीजन से लगा हुआ जो कार्बन है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, पर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो फिर इसको टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के लिए ऑक्सीजन में से, इसीलिए इसकी एसिडिक कैरेक्टर कम होगी। तो अभी कैसे ऑर्डर हो जाएगा, देखो सबसे कम एसिडिक कौन हो जाएगा, फिनॉल सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद में कौन एसिडिक हो जाएगा, मेटा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। ठीक, अब ये दोनों जो है इसमें मैंने आपको बताया दोनों में ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है एग्जैक्टली इस कार्बन के नीचे। आपको पता है क्या, ये मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ाई थी कि ये जो स्पीशीज है यानी कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ लिंकेज करता है और ये क्या फॉर्म करता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। तो अब क्या होगा, उसको ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक करना ही होगा पर साथ में इसका भी इंटरेक्शन हटाना होगा, तभी जाकर ये रिएक्शन, ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर पाएगा। तो इसकी एसिडिटी थोड़ी कम रहती है और यहाँ पर ऐसा कुछ केस ही नहीं है, यहाँ पर तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है तो ये ज्यादा एसिडिक, ये सबसे ज्यादा होगा और इसमें टाइम लगेगा। तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होगा वो इसके बाद में आ जाएगा और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। ठीक है, समझा आपको ये एग्जाम्पल, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन दिखता है इस पर। ठीक है, तो ये अभी सब में सिंगल ही था, अगर 2 रहते तो उनका तो कैरेक्टर और ज्यादा रहता है एसिडिक कैरेक्टर, अगर 3 रहते तो सबसे ज्यादा रहता। अब जैसे जितने वो मॉलिक्यूल्स देते हैं आप बस ऐसे ही फाइंड आउट करिएगा। अब हम एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे हैलोफिनॉल्स में। हैलोफिनॉल्स जो होते हैं ये इनका जो एसिडिक नेचर होता है, दे आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। ये बताया मैंने आपको, ये भी कैसे है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इसीलिए इनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो अगर मुझे क्वेश्चन आ गया फिनॉल्स के केस में भी, तो एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ये OH ग्रुप है और दूसरा है OH और यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये, क्योंकि ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इसीलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि ऑर्थो, ये OH है, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, क्लोरोफिनॉल, ब्रोमोफिनॉल और आयोडोफिनॉल, इनमें क्या ऑर्डर होगा। तो ये ऑर्डर देखना बहुत इजी है। आपको याद होगा आपने 11th क्लास में पीरियोडिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी थी, तब आपको बताया गया था कि जो हैलोजेंस होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, पर जो और फिर उन्हें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके अपने पास रखना भी होता है वो इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर रखने के लिए जगह भी होनी चाहिए,
तो जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का, पर इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू क्लोरीन कम होती है, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं होती है। अगर जगह ही नहीं रहेगी फ्लोरीन के पास, उसका शेल बहुत छोटा है, सेकेंड शेल में तो उसे रखना है इलेक्ट्रॉन, तो शेल छोटा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं कर पाता। अगर वो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं कर पाएगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी कम ही रहने वाला है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? ये क्लोरोबेंजीन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि फ्लोरीन के बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। क्लोरीन के बाद में कौन हो जाएगा? ब्रोमीन, फिर कौन हो जाएगा? आयोडीन, और फिर कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। ठीक है, समझो आपको ऐसा ऑर्डर रहेगा, यानी कि अगर मुझे इनको अरेंज करना है तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले किसका रहेगा? क्लोरीन वाले का रहेगा, फिर उसके बाद में ब्रोमीन वाले का रहेगा, फिर आयोडीन, और फिर फ्लोरीन, और सबसे लास्ट में फिनॉल का। ये फ्लोरोफिनॉल, हाँ मैं लिखा है नहीं मैंने पूरा, पर मैं बोल रही हूँ, ये फ्लोरोफिनॉल है, ये आयोडोफिनॉल है, ये ब्रोमोफिनॉल और ये क्लोरोफिनॉल। तो ऐसा ऑर्डर रहेगा उनका। ठीक है, समझे आपको कैसे किया? तो अब मैंने आपको 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के ऑर्डर्स बता दिए हैं। हाँ, और अब हम एक देखेंगे इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप का। अच्छा, आपको एक चीज बताने की रहेगी, जो हैलोजेंस के साथ में जब फिनॉल्स होते हैं तो वो जो 2 इफेक्ट शो करते हैं वो कौन से इफेक्ट्स होते हैं? एक होता है +R और दूसरा होता है -I। +R और -I इफेक्ट शो करते हैं। इसमें -I इफेक्ट प्रीडोमिनेट करता है। ठीक है, -I इफेक्ट प्रीडोमिनेट करता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप अटैच होगा तो इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप यानी फिनॉल पे मैंने CH3 ग्रुप लगाया है। CH3 अभी आपको बताया था ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप जब भी अटैच होता है तो वो एसिडिक कैरेक्टर को, ये क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? रिंग के पास तो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो रिंग तो अपने पास, कार्बन अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकती, तो वो किसको देने लगेगी? ऑक्सीजन को। और जब ऑक्सीजन को रिंग से ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो फिर वो ये वाले बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश ही नहीं करेगा, इसीलिए ये हाइड्रोजन तो रिलीज नहीं करेगा। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप अटैच होता है तो हमेशा एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। फिनॉल्स का एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, तो अब इसमें भी कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? इसमें 2 इफेक्ट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता होगा? प्लस चार्ज, इसीलिए कौन सा इफेक्ट शो करता है? +I इफेक्ट शो करता है। और एक और इफेक्ट है जो आपने पढ़ा था 11th क्लास में, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो ये 2 टाइप के इफेक्ट शो करेगा, एक है +I और दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट प्रीडोमिनेट करता है और +I इफेक्ट सप्रेस हो जाता है। अब यहाँ इसमें हमें एसिडिक कैरेक्टर्स का ऑर्डर एक बार बता देती हूँ आपको। अब अगर जैसे इसमें ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो इसके ऊपर क्या आने वाला है? नेगेटिव चार्ज आने वाला है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आने वाला है, यहाँ पे नेगेटिव। अगर मैं इसको ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजिशन पर अरेंज करके देखूँ तो क्या होगा? देखिए, जैसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप में नेगेटिव चार्ज से पढ़ते थे ना, वैसे ही यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज से पढ़ते थे, वैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज से पढ़ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सॉरी यहाँ पे मेटा बनाना चाहिए था मुझे, ये भी अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज। जब भी कभी डायरेक्टली इस वाले कार्बन के ऊपर जिसमें OH लगा हुआ है उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो फिर वो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। मीन्स ये फिर क्या हो जाएगा? सबसे लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन रहने वाला है इसमें? फिनॉल, क्योंकि वो तो फिनॉल एसिडिक नेचर के होते ही हैं, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और उसके बाद में कौन होगा? देखो, जिसके पास नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे नहीं आया, जिसमें OH ग्रुप लगा है, तो वो ये है। तो वो क्या है? मेटा मिथिल फिनॉल। मिथिल फिनॉल्स को एक और नाम यूज करते हैं, वो है क्रेसॉल। तो हम क्रेसॉल भी लिख सकते हैं, मेटा क्रेसॉल। अब उसके बाद कौन आ जाएगा? पैरा पोजिशन वाला। पैरा पोजिशन वाले में से उधर तक इलेक्ट्रॉन जाने में समय लगेगा, इसीलिए उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो पैरा क्रेसॉल। और फिर सबसे लीस्ट एसिडिक कौन हो जाएगा? ऑर्थोक्रेसॉल। ठीक है, समझा आपको कैसे किया हमने? बहुत सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा।
मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है सभी चीज़ें। तो अभी हमें सब्स्टिट्यूएंट्स के भी अगर क्वेश्चंस आए तो हमें आने चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप लगा है तो कैसे ऑर्डर होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा है तो कैसे ऑर्डर होगा, वैसा। ठीक है, ये जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था आपको इलेक्ट्रॉन गिविंग का, एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वो है मिथॉक्सी ग्रुप का भी ले सकते हैं। तो मिथॉक्सी ग्रुप अगर रहेगा यानी कि OCH3 ग्रुप रहेगा तो वो भी क्या करेगा, उसका भी जो और यानी एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल का वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप है। वैसे ही सेम अगर एमिनोफिनॉल लिया तो वो भी क्या करेगा, एमिनोफिनॉल का स्ट्रक्चर बता देती हूँ और उसका, तो ये है OH है और यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, एक बेंजीन रिंग है और OH लगा हुआ है और एक OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या है, मिथॉक्सीफिनॉल है और ये क्या है, एमिनोफिनॉल। ये भी कैसे ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप होंगे तो फिर उसका एसिडिक कैरेक्टर वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे किया, बहुत ही ईजी है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप, आपको आ जाएगा। चलिए, थैंक यू।